Hello friends, you are welcome to UCIUS education platform. Today we will continue our first chapter of history, that is the French Revolution. हमने प्रीवियस वीडियो में फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी के बारे में पढ़ लिया था और ये सारे टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम इसका सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे जो है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. Louis XVI ने टैक्स को इंक्रीज किया, इसके कारण आप लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में देख लिए थे। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? आप सोच सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कर रहे थे वो। In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had to call a meeting of the Estates General, which would then pass his proposals for new taxes. The Estates General was a political body to which the three estates sent their representatives. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1640. फ्रांस में जो ओल्ड रिजाइम का था ना, वो ओल्ड रिजाइम का जो मोनार्क था वो पावर को इम्पोज नहीं कर पा रहा था अकॉर्डिंग टू दिस विल एलोन, अकेले। रेदर ही हैड टू, इसके अलावा उसे मीटिंग कॉल करनी पड़ी एस्टेट जनरल की, विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, वो जो न्यू टैक्सेस में प्रपोजल लाई। द एस्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी Okay. Rather, he had to call a meeting of the Estates General, which would then pass his proposal for new taxes. The Estate General जो एक पॉलिटिकल बॉडी थी जो थ्री एस्टेट को रिप्रेजेंटेटिव्स सेंड करती थी। हाउएवर द मोनार्क अलोन, कभी कभी जो मोनार्क था वो खुद डिसाइड कर देता था कि जब की मीटिंग को कब बुलाना है इस बॉडी में। द लास्ट टाइम इट वॉज डन इन 1614, वो आखिरी बार 1640 में हुई थी। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the Estates General to pass proposals for new taxes. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and second estate sent 300 representatives each, who were seated in row facing each other on two sides, while the 600 members of the third estate had to stand at the back. The third estate was represented by its more prosperous and educated members. Peasant artisans and women were denied entry to the assembly. However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters, which was the representatives had brought with them. 5 May 1789 में लुई 16 कॉल्ड टुगेदर, उसने असेंबली ऑफ एस्टेट जनरल को एक साथ बुलाया फॉर प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। रेस्प्लिडेंट हॉल, जो परसेल्स में रेस्प्लिडेंट हॉल है, वो प्रिपेयर किया गया फॉर होस्ट द डेलीगेट्स के लिए, डेलीगेट को होस्ट करने के लिए। द फर्स्ट और सेकेंड, पहला और दूसरा एस्टेट, जिसमें 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे हर एस्टेट्स में, उन्हें बिठाया गया हर रूम में, ईच अदर ऑन टू साइड, और हर तरफ while the 600 members of the third estate had to stand at the back, और थर्ड एस्टेट के 600 मेंबर्स को पीछे बिठाया गया। द थर्ड एस्टेट वॉज रिप्रेजेंटेटिव बाई इट्स मोर प्रॉस्पेरस, जो थर्ड एस्टेट को मोर प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड मेंबर्स थे, जिसमें पीजेंट आर्टिसंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। जो पीजेंट मतलब किसान, आर्टिसंस कलाकार और वुमेन को डिनाई किया, मतलब वो नहीं आए थे असेंबली में। हाउएवर देयर ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर व्हिच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्रॉट विद देम। फिर है voting in the Estates General in the past had been conducted according to the principle that each estate had one vote. This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice, but members of the third estate demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. When the king rejected this proposal, members of the third estate walked out of the assembly in protest. Estates, general estate में voting जो पहले हुई थी had been conducted according to the principle that each
एस्टेट हैड वन वोट दिस टाइम। इस बार लुइस 16 था, वो डिटरमाइन किया गया फॉर कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस फिर से करने में। व्हाट मेंबर्स, लेकिन जो थर्ड एस्टेट के मेंबर थे उन्होंने वोटिंग की डिमांड की, जो असेंबली सारी असेंबली में होती थी, जहां हर मेंबर के पास एक वोट का अधिकार था। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था। और जो फिलोसफर जैसे कि रोसी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने ये बुक लिखी है, उन जैसे फिलोसफर्स का राइट था। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, जब राजा ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, मतलब निष्कासित कर दिया, तो मेंबर थे थर्ड एस्टेट के, वो एक साथ असेंबली में इसका विरोध करने के लिए आ गए थे। The representatives of the Third Estate viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. On 20 June, they assembled in a hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. They were led by Mirabeau and Avicius. Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with a society of feudal privilege. He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने देखा कि जो स्पोकमैन थे होल सारी फ्रेंच नेशन के, ऑन 20 जुलाई 20 जून को जो असेंबल हुए एक हॉल में इंडोर टेनिस कोर्ट बर्सिल्स के ग्राउंड में। उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया नेशनल असेंबली और सो नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। दे वर लेड बाय मीराबियो। उनकी लीडिंग किसने की? मीराबियो और एविसियस ने। जो मीराबियो थे वो एक नोबल फैमिली काम में उनका जन्म हुआ, लेकिन वो चिंतित थे फॉर नीड टू डू अवे विद अ सोसाइटी ऑफ द फ्यूडल प्रिविलेज को लेके चिंतित थे। ही ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस। वो एक जर्नल ला और उन्होंने पावरफुल स्पीचेस डिलीवर्ड की बर्सिल्स की असेंबल्ड भीड़ में। इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का डिस्कस करेंगे। यू कैन सी इन दिस फिगर द टेनिस कोर्ट ओथ preparatory sketch for a large painting by Jacques Louis David. The painting was intended to be a hug in the National Assembly. Thank you for watching us and like and share this video. Thank you.